लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगे तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो। ट्वेल्थ के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever, और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूं। सो ये आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हजार रुपए भी आ जाए तो बहुत है। You have to feel that you're better than the competition. We want to do and we want to have a 5-year plan. We want to end up being the biggest in the industry. We are going to be the biggest in the industry. But I had a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing. And I had a lot of other opportunities with other people that are pretty successful. I didn't see anything or anyone that was close to these three guys. I want this to go great. I want people to be successful. I want people to make money. I want people to love what they're doing. It's going to be our company as a group. We're going to come out with new and different products. They're going to be wonderful products. The network itself is going to be amazing. And let's make this the #1 network marketing company. That the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. If you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical, and this industry creates jobs, and therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Yeah. But each one of the companies must start doing manufacturing in India. If you're going to sell, while we have brought systems, we've brought discipline, we've brought guidelines, we've done this, we drafted this long time back. It took Ministry of Consumer Affairs some time, but they finally issued those guidelines. So there's now everybody in government accepts that there are Government of India guidelines, clear guidelines. How you people are an integral part of now, that has given respectability. Earlier, you people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that you are, government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that
You are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they've been issued by Government of India. My view is that a lot of wrong was done against some of you in the past. We've forgotten that. We should look at the future. We should look at growth. I wish you all the very best. I wish you all grow and prosper. I wish your companies prosper. And I wish both all of you and your family. करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो करोड़ों लोग का अगर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, अगर वो काम नहीं करेंगे, तो इस देश की तरक्की कैसे होगी? That's the question. अब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? पहला रीजन नेटवर्क मार्केटिंग का, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, यानी ये रोजगार देता है. नेटवर्क मार्केटिंग रोजगार देता है. दूसरा रीजन, इट एनकरेजेस मैन्युफैक्चरिंग. जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खुलेंगी, जितनी नेटवर्क मार्केटिंग का यहां पे ग्रोथ होगा, जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी. अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जॉब भी बढ़ेगा, क्योंकि जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर मान के चलिए अभी किसी कंपनी में 1000 लोग हैं, बहुत गौर से समझिएगा, उस कंपनी में कल की डेट में 10,000 लोग आ गए, तो अभी वो 1000 लोगों के लिए उत्पाद ले रही थी, प्रोडक्ट ले रही थी, तो वो जहां से भी लेती होगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी. वो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उसने कहीं ना कहीं किसी मैन्युफैक्चरर से उसने ताल्लुकात बैठाए होंगे, वहां से वो प्रोडक्ट ले रही होगी. अभी वो 1000 के लिए ले रही थी और अब पता चलता है वो 10,000 लोग के लिए ले रही है. तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी. अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो वो अपने यूनिट को बढ़ाएगा, वो अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, उसके लिए उसको और लेबर चाहिए होंगे, यानी नौकरी मिलेगी. बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी. ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी भारत सरकार कह रही है, ये नीति आयोग कह रही है कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना होगा. और मैन्युफैक्चरिंग कौन बढ़ाएगा? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं कस्टमर्स, कंज्यूमर्स. जितने अधिक कंज्यूमर्स होंगे उतना अधिक मैन्युफैक्चरिंग होगा. नेटवर्क मार्केटिंग इनकरेज करती है मैन्युफैक्चरिंग को. नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी टू एम्प्लॉय अनलिमिटेड पीपल. तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? पॉसिबिलिटी टू एम्प्लॉय अनलिमिटेड पीपल. देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के पास एक क्षमता है, ये संभावना है कि ये जितने लोग हो उन सबको रोजगार दे सकती है. बुला के लाओ करोड़ों लोग को, बुला के लाओ लाखों लोग को. नेटवर्क मार्केटिंग का दरवाजा खुला हुआ है. नेटवर्क मार्केटिंग में लिमिटेड सीट्स नहीं होते. आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग से इतनी मोहब्बत क्यों करता हूं? क्योंकि दुनिया के हर फील्ड में लिमिटेड सीट्स हैं. आप रेलवे में जाओ, लिमिटेड सीट्स है. आप एसएससी में जाओ, लिमिटेड सीट्स है. आप यूपीएससी में जाओ, लिमिटेड सीट्स है. आप डॉक्टर बनने जाओ, लिमिटेड सीट्स है. आप इंजीनियर बनने जाओ, लिमिटेड सीट है. आप आईआईटी में जाओ, लिमिटेड सीट्स है. आप आईआईएम में जाओ, लिमिटेड सीट्स है. आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लिमिटेड सीट्स है. आप नेटवर्क मार्केटिंग में आओ बस. तो कोई भी व्यक्ति, ये सब टीम वर्क की बात है. अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, है ना. अकेला चना झाड़ नहीं पोंक सकता, आपने सुना होगा. तो मिलके ही होगा सर. छोटे छोटे स्टेप्स, कुछ स्टेप्स मैं लूंगा, कुछ स्टेप्स आप लेंगे, कुछ लोग और लेंगे, और बनते बनते कारवां बनेगा. और मुझे 100% यकीन है कि आने वाले 10 वर्षों में सारे के सारे महाविद्यालयों में, सारे के सारे विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा मुकाम हासिल करके रहेगा एज अ सब्जेक्ट, एज अ कोर्स. वंडरफुल सर, ये लाइनें बहुत इंस्पायरिंग हैं और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट डालेंगे निश्चित रूप से पर्टिकुलर इस लाइन पे कि बहुत जल्दी विश्वविद्यालयों में और कॉलेजेस में डायरेक्ट सेलिंग की नाम होगी, एक पहचान होगी, और हम लोग फकर से बता पाएंगे. जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग चलती नहीं है और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं है, फिर हम दिखा पाएंगे कि फिलहाल विश्वविद्यालय में ये पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा और सबको मिलकर इस दिशा में काम करना पड़ेगा. डॉक्टर साहब, यहाँ पे